Big breaking news coming in from Maharashtra now. Ahead of the elections later this year, Sanjay Nirupam, who resigned from the Congress party, and he has now alleged that Uddhav Thackeray secretly met with the notorious Gupta brothers from South Africa. He claims this secret meeting took place in the national capital. Sanjay Nirupam claims Uddhav Thackeray met the Gupta brothers of South Africa to seek funds. He says Uddhav Thackeray met Gupta brothers, the controversial Gupta brothers, to seek funds for the elections, obviously, which are coming up in the latter half of the year. The meeting, or the alleged meeting, has raised concerns and has sparked a controversy over Uddhav's alleged connections with controversial businessmen. This is a claim made by Sanjay Nirupam. Sanjay Nirupam likely to hold a news conference in a short while from now. We're expecting that news conference a little after 2 p.m. And he has claimed that Uddhav Thackeray met the Gupta brothers. This is a big breaking news update that's just come in. We'll go across to Shravan. Shravan will be joining us from our newsrooms in Noida. This is a big claim ahead of the elections that are scheduled to take place in Maharashtra. And we know that Uddhav Thackeray's Shiv Sena has been split. He doesn't have control over his party. A fraction of his party remains with him. Eknath Shinde, now chief of the Shiv Sena. Shravan is live with me. I'm going across to him. Shravan, what more do we know about this meeting? When did this meeting take place, and do we have any details to back this claim up? Well, in fact, first, Niranjan, for the benefit of our viewers, let me just try and explain who exactly are the Gupta brothers and why a meeting with Gupta brother raises an alarm. Reason being, remember, the Gupta brothers have been operating in South Africa for a very long time. And the allegation that was leveled against the Gupta brothers was that they have looted South Africa of millions of rands and resulted in a situation that they had to run away from South Africa. So much so, South Africa has been pursuing with India as far as extradition of Gupta brothers are concerned. In the month of May, one of the Gupta brothers was also arrested in a suicide case. Remember, the allegation is of money laundering. The allegation is of looting millions of rands in a business. And that too, remember, this was when Jacob Zuma was the president, and they were considered to be a close confidant of Jacob Zuma. I'm told, Niranjan, that Mr. Naresh Maske, he's the Shiv Sena parliamentarian from Thane, who's joining us, because it is Naresh Maske who has made that allegation that Uddhav Thackeray had met Gupta brothers in Delhi. That's a sensational allegation I was pointing out. I'm not very sure if he's already joined us. If he has, let's try and get him on air, and we'll take these questions directly with Naresh Maske, Shiv Sena parliamentarian, who's joining us on this broadcast. And it is he who 2 days back made this allegation. In a short while from now, Sanjay Nirupam is also expected to do an emergency press conference around 2 o'clock in the afternoon. Because remember, this is going to be perhaps a big blow to Uddhav Thackeray, if at all, if there is a confirmation that Gupta brothers actually met Uddhav Thackeray. What was the purpose of that particular meeting? We'll try and see. I'm not very sure if he has joined. Naresh Maske has already joined us on this broadcast. Let us have him on air right now. Maske जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग हुई है और दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? और सवाल भी ये उठेगा कि आपके पास क्या तथ्य है? तो देखो, हेलो 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 मस्के जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दिल्ली में जब उद्धव ठाकरे जी आए थे, तब 7 तारीख को दोपहर को गुप्ता ब्रदर्स, जो इंटरनेशनल रैकेट में, करप्शन में, साउथ अफ्रीका में उनके ऊपर चार्जेस है, वहां की सरकार ने उनके ऊपर केस डाला है, वो भाग के दुबई गए थे। उनके ऊपर हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में फंसाने के, करप्शन के केसेस हैं। वो आदमी की मीटिंग उद्धव ठाकरे जी के साथ
उस दिन दिल्ली में हो गई। हमारी जानकारी है कि ये मीटिंग हो गई। उसके बारे में मैंने ये आरोप किया था कि वो मीटिंग किस लिए हो गई, उसके पीछे रीजन क्या था कि जो इंटरनेशनल करप्शन में जो आदमी पकड़ा गया है, वो जामीन पे छूटा है, तो उसकी मीटिंग क्यों हो गई, ये हमारा सवाल है। गए 2 दिन से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सचिन आहिर करके उनका एक नेता है, वो बोला है कि ऐसे लोग आके मिलते हैं। उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलने का रीजन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। नरेश जी, एक एविडेंस के तहत आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आखिरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या बुनियाद है? क्योंकि अगर ये कहा जाए कि आपके पास एविडेंस के तहत में क्या है, क्या आपके पास कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ तस्वीर है जिससे आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे आखिरकार गुप्ता ब्रदर्स से वो मिल चुके हैं? ये देखो, संडे के दिन मैं ये बोला था, अभी तक उसका जवाब संजय राउत रहेंगे और दूसरे कोई रहेंगे, उनके पास से अभी तक आया नहीं है। उसके पीछे क्या है? हम लोगों ने आरोप किया है, नहीं है तो बोलो नहीं हो गया है, तो बोलो हो गया है, तो काय के लिए हो गई मीटिंग? हम लोग प्रूफ देने की जरूरत क्या है? मीटिंग हो गई कि नहीं हो गई, बाद में हम लोग देखेंगे ना हमारे पास क्या प्रूफ है क्या नहीं प्रूफ। उनसे आंसर हम लोग चाह रहे हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये मीटिंग संजय राउत जी वो मीटिंग में थे, संजय राउत के घर में वो मीटिंग हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है? संजय राउत के घर में, एक मिनट, आप बोल रहे कि ये मीटिंग, नरेश जी आप बोल रहे कि ये मीटिंग संजय राउत के घर में हुआ। अगर संजय राउत के घर में हुआ और दिल्ली में हुआ तो कुछ रिकॉर्ड तो होगा ना, उस मीटिंग का रिकॉर्ड तो होगा। पूछो मीटिंग हो गई क्या नहीं हो गई, संजय राउत जी को पूछो मीटिंग हो गई कि नहीं हो गई। आपके पास जो जानकारी है कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट डिटेल्स आपके पास है, कब हुआ? 7 तारीख को दोपहर के टाइम ये मीटिंग हो गई, मुझे ये जानकारी है। 7 तारीख को दोपहर को उनके ऑफिशियल दिल्ली रेजिडेंस में, ऑफिशियल दिल्ली रेसिडेंस में उद्धव ठाकरे का जो दौरा हो गया था, उसके दूसरे दिन ये मीटिंग हो गई। नरेश जी, एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर सरकार में उन्होंने बताना चाहिए, अगर 7 तारीख की नहीं हुई तो 8 तारीख को हो गई क्या 6 तारीख को हो गई? आपके ऊपर भी उन्होंने बताना चाहिए। मैं बोला गुप्ता बंधु से उद्धव ठाकरे जी की मीटिंग हो गई, संजय राउत जी के घर पे होगी, उसका रीजन क्या है? इलेक्शन फंड के लिए मीटिंग हो गई क्या? उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए ये संजय राउत की साजिश है। उद्धव जी सीएम पद के रेस में है, उनको संजय राउत शरद पवार जी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनको शरद पवार जी को आप कह रहे हैं कि मैदान क्लियर करने के लिए उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए ये मीटिंग हो गई। संजय राउत, नरेश जी आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो भी संजय राउत कर रहे हैं शरद पवार के कहने पर। ये देखो, उद्धव ठाकरे जी को राजनीति का कुछ समझता नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शरद पवार जी ने लिखा है उनके आत्मचरित्र में कि उद्धव ठाकरे जी को राजनीति का कुछ समझता नहीं, शरद पवार जी ने लिखा है। इसीलिए उनको फंसाने के लिए, साजिश करने के लिए कि वो सीएम के पद के रेस से भाग जाए, वो बदनाम हो जाए। और एक रीजन हो सकता है, इलेक्शन फंड, और एक रीजन हो सकता है इलेक्शन फंड। ओके, मैं एक और ओके, आप ओके, लेट मी गेट दिस राइट। नरेश जी, आप ये बोल रहे हैं कि संजय राउत ऑन बिहाफ ऑफ शरद पवार organize the meeting with Gupta brothers so that he gets election funding for NCP. Yeah. For NCP and Shiv Sena. No. For NCP plus. ये देखो 2 रीजन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कि ऐसे इलेक्शन के टाइम पे दिल्ली में गुप्ता बंधु जैसे आदमी लोगों से कि जो इंटरनेशनल रैकेट में जो उनको दुबई पुलिस ने भी जमा किया था, उनको भारत देश के कई राज्यों ने उनको जमा किया था, उनको जुलाई में उनका जामीन हुआ है। ऐसे लोगों से एक तो मिलाना और वो खबर बाहर आना, इसका मतलब एक तो उनको बदनाम करना, वो सीएम के रेस में है,
उनको सीएम के रेस से बाहर निकालना, और वो सीएम से रेस से बाहर निकलेंगे तो शरद पवार जी और उनके आप्त वगैरह क्लियर मैदान होगा। अगर ये रीजन नहीं होगा तो अभी बंबई में कंटेनर आने बंद हुआ है, बंबई की सत्ता नहीं क्या आ रही उनके कंटेनर? हाथ कौन से में। कंटेनर? तो कौन से अरे कंटेनर? देखो, इलेक्शन फंड के कंटेनर कहाँ से आते थे? फंड के कंटेनर बंबई कॉर्पोरेशन से आते थे। अगर वो बंद हुए होंगे तो दिल्ली में ये कंटेनर जमा करेंगे। ऐसे ये दो रीजन हो सकते हैं, एक तो बदनाम करने का, नहीं तो अगर उनको हेल्प कर रहे हैं तो इलेक्शन फंड जमा करने का। गुप्ता बंधु तो कुछ राजनीतिक तो लोग नहीं है। नहीं, लेकिन ये कि लिंक उनको क्या है उनके नरेश जी? लिंक क्या है? उद्धव ठाकरे और गुप्ता ब्रदर्स का लिंक क्या है? संजय राउत यही लिंक है, संजय राउत यही लिंक है। संजय राउत जी ने उनको बिठाया है उद्धव ठाकरे जी के पास। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या है यही तो हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं नरेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, गुप्ता, नहीं नहीं, क्योंकि आप एक देखो, शिवसेना की एमपी है, एक शिवसेना के सांसद है आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो गुप्ता ब्रदर्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल, ओके? हाँ। अगर इनका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो मैं पूछ रहा हूं ये कैसे, ये लिंक कहां से आया? क्या पुराना रिश्ता था गुप्ता ब्रदर्स से? पुराना रिश्ता था क्या? गुप्ता ब्रदर्स 2016 में जो साउथ अफ्रीका की जो सबसे बड़े अमीर लोग, हाँ जी, उनके पहले 10 लोगों में ये गुप्ता ब्रदर्स थे। वो पहले पता है। 10 लोगों में तो एक तो इलेक्शन फंड जमा करने का, नहीं तो ऐसे बदनाम आदमी से मिला के उद्धव ठाकरे जी को बदनाम नरेश जी, करने का, ये एक इसके सवाल- पीछे साजिश होगी। नरेश जी, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि आप उद्धव ठाकरे के साथ थे, और एक अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फंडिंग को लेकर ये हो सकता है ये मीटिंग, क्या आप ये पुष्टि कर सकते हैं कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे गुप्ता ब्रदर्स से मिल चुके हैं? क्योंकि कई सारे दूसरे आरोप उनके ऊपर लगा है कि जो कुछ लोग हैं जो अब नाइजीरिया में है उनके साथ भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। क्या आप ये पुष्टि कर सकते हैं कि इससे पहले भी गुप्ता ब्रदर्स के साथ मीटिंग हो चुकी है? ये देखो, पहले किसके साथ मीटिंग हो गई, नाइजीरियन से हो गई, क्या गुप्ता ब्रदर्स जी से हो गई, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब दिल्ली आए थे तब वहां मीटिंग हो गई संजय राउत जी के घर पे। ये मुझे जो मालूमात मिली वो मैं प्रेस के सामने कितने लोग बोला, थे? क्योंकि मुझे भी नरेश जी, कितने लोग थे? मुझे भी आश्चर्य हुआ। देखो, अगर अभी भी हम लोग उनके अपोजिट में हैं, हमारा मार्ग अलग है, लेकिन कभी तो हम लोगों ने उनके साथ काम किया था। तो हमारे जो पुराने लीडर है उनको ऐसे लोगों से मिलाना, ये मुझे बुरा लगा कि उनको ऐसे लोगों में उनको साजिश करके कि उनको ऐसे लोगों से साथ मिलाना, ये मुझे बुरा लगा। नरेश जी, इसलिए मैं जाहिर पूछा कि उनके साथ मीटिंग क्यों हो गई। सवाल आप पे भी उठता है क्योंकि आप सत्ता में हैं, और आप अगर कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आ चुकी है यूएई से, क्या आप केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तरह से जांच होनी चाहिए, पता करनी चाहिए कि आखिरकार एक नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो गुप्ता ब्रदर्स से मिल रहे हैं? क्या आप मांग करते हैं कि एक तरह से निष्पक्ष एक जांच हो इस पूरे मामले को लेकर? ये देखो, मैंने सवाल उपस्थित किया है कि उनके साथ मीटिंग हो गई क्या, नहीं हो गई तो आप बताओ, नहीं हो गई तो बताओ हो गई। अगर वो नहीं हो गई बोलेंगे तो बाकी का हम लोग मांग करेंगे ना। नहीं हो गई तो हो गई तो बताओ, पर क्या आप क्यों नहीं हो गई? मानते नरेश? ये देखो, जो संजय राउत रोज सुबह उठ के हर एक ये हो गया, ये सुपारी, ये वो ऐसा सब बातें करते हैं, वो इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसके बारे में उन्होंने बोलना चाहिए। क्या आप नहीं मानते कि एक तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? बताओ। अगर आप नरेश अगर आप ये लगा रहे कि आप कह रहे हैं कि देखिए उनके ऊपर ये निर्भर करता है उनके ऊपर, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के ऊपर, कि क्या वो मानेंगे कि वो नहीं मानेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये मीटिंग हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक तरह से एविडेंस देनी चाहिए कि ये मीटिंग हुई है? ये देखो, मेरे आरोप अगर बेबुनियाद है तो मैं संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, सब मीडिया में सब जगह ये न्यूज आई है,
सब प्रिंट मीडिया पे आई है, सब टीवी मीडिया पे आई है, तो उन्होंने बोलना चाहिए नरेश मुझके झूठ बोल रहा है। नरेश जी, साफ तरीके से ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास एविडेंस है, और आप अगर आपके पास, नरेश जी, अगर आपके पास एविडेंस है तो क्या आप सही समय पर ये एविडेंस, ये मीटिंग की एविडेंस आप सबके सामने लाएंगे? ये देखो मेरे पास क्या है वो बाजू में रखो। उस दिन के संजय राउत जी के अगर उनके घर के सीसीटीवी कैमरे उन्होंने बंद किए होंगे तो रास्ते के सीसीटीवी कैमरे चालू होंगे, वो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके जो गुप्ता बंधु है उनके उनको फोन रिकॉर्ड, उनको तो उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत से रास्ते हैं, लेकिन वो बोलने तो दो। नरेश जी, मेरा मीटिंग नहीं हो, उन्होंने बोलना तो चाहिए। दो प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप एक सांसद है, अगर आपके घर में कोई आए दिल्ली में तो उसका क्या ऑफिशियल रजिस्टर या कुछ होगा? मेरे घर पे अगर कोई आएगा जो मेरा पहचान वाला नहीं है, जो मुझसे पहचानता नहीं, जो सोशल से संबंधित उनका कुछ नाता नहीं है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट से कुछ नाता नहीं है, अगर ऐसा फ्रॉड आदमी आएगा और मेरे को बोलेगा तुमसे मिलने का है, तो मैं बोलूंगा बाबा क्यों मुझसे मिल रहा है, क्या पीछे रीजन क्या है, काय के लिए मेरे पास आ रहा है, ये तो मैं पूछूंगा ना। नहीं, इसका कुछ रिकॉर्ड नरेश जी, मेरा जो कोलीग है श्रवण, मेरा कोलीग है श्रवण, उससे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। श्रवण, when a meeting like this takes place, is there a record or a diary entry that's made? देखो हमारे जी सवाल देखिए आप दिल्ली में आपको एक सवाल, देखिए ये सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि एक मीटिंग आपके घर में दाऊद के साथ हो गया या किसी और के ऐसे नाम ले लेते हैं, क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि एक तरह से आपको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। दूसरा, जो मेरे कलीग निरंजन ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार एक रिकॉर्ड तो होगा। सुनो, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर संजय राउत जी ने मुझ पे आरोप किया कि मेरे घर पे दाऊद के साथ मीटिंग हो गई, अगर आरोप किया तो मैं तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरे घर पे ये मीटिंग नहीं हुई है, अगर आपके पास पुरावे है तो लोगों के सामने लाओ। ये बहुत बड़ा आरोप है। पूछा नहीं, ये देखो, ये मेरे को अभी तक पूछा नहीं उन्होंने। अच्छा, ये किधर मेरे को पूछा कि तुमने जो आरोप किया है वो गलत किया है, ये सही किया है, गलत है, नहीं बोला। 2 दिन नहीं बोला, 2 दिन हो गया। और उसके पीछे उनका नेता है सचिन आहिर, उपनेता है, उन्होंने क्या बोला उसका एक वीडियो मेरे पास है कि उन्होंने क्या बोला कि ऐसे नेताओं लोगों को, ऐसे कई लोग, कोई भी लोग मिलने का आते हैं उनको हम मिलते हैं। अगर वो खुद, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर उनका एक ही एक्सप्रेशन आया है, ऐसे बहुत से लोग हैं नेता लोगों को मिलने को आते हैं। तो ये गुप्ता बंधु जो मिलने को आए, वो बंद कमरे में संजय राउत और उनका मीटिंग हो गया। तो ऐसे कई लोग में है क्या गुप्ता बंधु? कई लोगों में उनकी गणना है क्या? एक काम करते हैं नरेश जी, ये बहुत गंभीर आरोप है, हम यहीं पे छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, विल ट्राई एंड गो बैक एंड डू सम रिपोर्टिंग इस पे। हम देखेंगे उस टाइम आप बोल रहे 7th को हुआ, दोपहर को हुआ, कुछ रिकॉर्ड होगा उसका, सीसीटीवी या फुटेज या कुछ तो रिकॉर्ड होगा, उस पे हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू श्रवण फॉर जॉइनिंग अस।